हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर बाय जेम्स एलन के लॉन्ग आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन। इम्पॉर्टेंट है। जेम्स एलन के अनुसार स्वास्थ्य का क्या रहस्य है। आंसर, अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन, जनरली स्पीकिंग द सीक्रेट ऑफ हेल्थ इज फेथ एंड प्योरिटी. The secret of health in particular is the harmonious mind. Sickness is the result of our own error. Anger, worry, jealousy, greed and such other feelings sow the seeds of disease in our mind. In order to be healthy, we should keep our mind free from these feelings. Jealousies, suspicions, worries, hatred and selfishness cause disease of stomach, nerves and pain of joint. On the other hand, if we have joyful and loving thoughts and goodwill, we shall need no medicine. Work or even overwork does not destroy one's health. Ill health is often the result of foolishly wasted energy. Work, mental or physical, is always health giving. What is needed is to work without being anxious or excited or worried over needless detail. The secret of health is thus a pure heart and a well-ordered mind. लेखक के अनुसार स्वास्थ्य का रहस्य विश्वास तथा पवित्रता होती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य का रहस्य शांतिपूर्ण मानसिक आधार होता है। हमारी बीमारी स्वयं की गलती तथा पाप का परिणाम होती है। क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच तथा अन्य बुरी भावनाएं हमारे मस्तिष्क के अंदर बीमारी के बीजों, कीटाणुओं को उत्पन्न करती हैं। स्वस्थ होने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को इन सभी भावनाओं से मुक्त रखना चाहिए। ईर्ष्या, संदेह, चिंताएं, घृणा की बातें तथा स्वार्थपरता पेट की बीमारियों, शिराओं की बीमारियों तथा जोड़ों के दर्द को उत्पन्न करती हैं। इसके दूसरी ओर यदि हमारे पास प्रसन्नतादायक तथा प्रेमपूर्ण विचार एवं सद्भावना होगी तो हमें किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। कार्य तथा अत्यधिक कार्य का बोझ किसी के स्वास्थ्य को बर्बाद नहीं करता है। मूर्खतापूर्ण ढंग से नष्ट की गई शक्ति का परिणाम प्रायः बुरा स्वास्थ्य होता है। कार्य चाहे मानसिक हो अथवा शारीरिक सदैव स्वास्थ्यवर्धक होता है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए जो कुछ आवश्यक है वह बिना चिंतित हुए अथवा बिना उच्छेदित हुए कार्य करना है। इस प्रकार स्वास्थ्य का रहस्य पवित्रता से परिपूर्ण एक हृदय तथा सुनियोजित मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन 2, हाउ अकॉर्डिंग टू जेम्स एलन कैन ए मैन बिकम ग्रेट एंड पावरफुल। जेम्स एलन के अनुसार मनुष्य किस प्रकार महान तथा शक्तिशाली बन सकता है। आंसर, इन द essay The Secret of Health, Success and Power, James Allen tells us how a man can become healthy, successful, great and powerful. The secret of all this is pure and unselfish spirit, purity and faith and singleness of purpose. We must not neglect our small task. By doing our small task, we are able to complete our larger task. In fact, this film Rise is the secret of true power. By constant practice, we should learn how to use all our sources upon a given point. We must not waste our energy in light or useless tasks. Next, we need firmness. Power is closely related to immovability. The mountain, the rock and the oak are all powerful because they are fixed. We should be immovable like them. That man who remains calm is powerful when others yield and change. If we wish to control, we must be able to control ourselves. For this, we must be calm, fearless, thoughtful and serious. Passion is not power. Passion wastes our energy and power. If we do not have these qualities, we should get them by practice. This practice begins with overcoming purposeless acts such as unnecessary, uncontrolled laughter, joking merely to make a laugh, ideal task. Above all, we need singleness of aim.
We should first have a good and useful purpose, and then we should devote ourselves wholeheartedly to it. We should not be down by anything. Thus a person can become great and powerful by being steady, firm, fearless, self-controlled and single-minded. द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक लेख में जेम्स एलन हमें बताते हैं कि एक मनुष्य किस प्रकार स्वस्थ, महान तथा शक्तिशाली बन सकता है। इन सब का रहस्य पवित्र तथा निस्वार्थ भावना, पवित्रता, विश्वास तथा एक उद्देश्य का भाव होता है। हमें अपने लघु कार्यों के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपने लघु कार्यों को करके हम अपने बड़े कार्यों को करने में समर्थ हो जाते हैं। दृढ़ता का यही उत्थान सच्ची शक्ति का रास होता है। निरंतर अभ्यास से हमें दिए गए विषय तथा कार्य पर अपने साधनों का उपयोग करना सीख लेना चाहिए। हमें हल्के अथवा निरर्थक कार्यों में अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। शक्तिशाली बनने के लिए हमें दृढ़ता की आवश्यकता होती है। शक्ति स्थिरता से, निकटता से जुड़ी हुई होती है। पर्वत, चट्टान तथा बलूत का वृक्ष ये सभी शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे स्थिर होते हैं। उनके भी समान हमें भी स्थिर होना चाहिए। वह व्यक्ति शक्तिशाली होता है जो शांत तथा अविचलित रहता है, जबकि दूसरे व्यक्ति पराजय स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम नियंत्रण करने के इच्छुक हैं तो हमें अपने स्वयं पर नियंत्रण रखने में समर्थ बनना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शांत, निर्भीक, विचारशील तथा गंभीर बनना होगा। संवेग शक्ति का नहीं होता है। संवेग हमारी शक्ति को नष्ट करता है। यदि हमारे अंदर ये गुण विद्यमान नहीं है तो हमें इन्हें अभ्यास के द्वारा प्राप्त करना होगा। यह अभ्यास उद्देश्य विहीन कार्यों जैसे अनावश्यक तथा अनियंत्रित हंसी द्वारा प्राप्त करना होगा। यह अभ्यास उद्देश्य विहीन हंसी उत्पन्न करने के लिए मजाक करना, आलस से परिपूर्ण वार्तालाप पर विजय प्राप्त करने से आरंभ होता है। सबसे ऊपर हमें उद्देश्य की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें अच्छा तथा लाभदायक उद्देश्य निश्चित करना चाहिए। तब हमें इस कार्य में पूर्ण उत्साह के साथ अपने आप को लगा देना चाहिए। हमारा ध्यान किसी निरंतर लक्ष्य की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार एक व्यक्ति दृढ़ता, स्थिरता, निर्भीकता, आत्मनियंत्रण तथा एक लक्ष्य होकर महान तथा शक्तिशाली बन सकता है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द ऑथर्स एडवाइस टू गेट रेड ऑफ ब्रेक डाउन थ्रू ओवरवर्क? अत्यधिक कार्य करने से जो बेहद थकान आ जाती है उससे बचने के लिए लेखक ने क्या सलाह दी है? आंसर, वी डू फाइंड दैट ओवरवर्क एंड ब्रेक डाउन आर क्लोजली रिलेटेड, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्रेक डाउन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ overwork, it is the result of our foolish method of work. We in fact waste more of energy than what we put to use. The author advises us not to waste our energy while doing a work. He advises us not to get anxious or excited or to worry over needless details. Thus we can save much of energy and avoid breakdown. Let the work be of mind or body. We should do it with firmness and regularity. We should care only for our aim and not for unnecessary sidetracking. It is how the author advises us to get rid of breakdown through overwork. हम यह पाते हैं कि अत्यधिक कार्य तथा थकान में गहरा संबंध होता है, किंतु अधिकतर मामलों में थकान का कारण अत्यधिक कार्य नहीं होता। थकान का कारण होता है काम करने का हमारा मूर्खतापूर्ण तरीका। हम वास्तव में जितनी शक्ति का उपयोग करते हैं उससे अधिक शक्ति को व्यर्थ में खो देते हैं। लेखक हमें इस बात की सलाह देता है कि किसी काम को करने में हम अपनी शक्ति को बर्बाद ना करें। लेखक सलाह देता है कि हम बेकार की बातों पर आतुर व उत्तेजित ना हों, ये चिंता ना करें। इस प्रकार हम बहुत ऊर्जा बचा सकते हैं और अत्यधिक थकान से बच सकते हैं। काम चाहे मस्तिष्क का हो या शारीरिक, हमें इसे दृढ़ता से लगातार करना चाहिए। हमें केवल अपने उद्देश्य की परवाह नहीं करनी चाहिए, ना कि इधर उधर की बेकार की बातों की। इस प्रकार से लेखक हमें सलाह देता है कि हम अत्यधिक कार्य की थकान कैसे बच सकते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज द वे टू गेट सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता प्राप्त करने का क्या रहस्य है? आंसर, की टू सक्सेस इज फैथ. वन हु हैज फैथ गेट्स सक्सेस. टू बी सक्सेसफुल वी शुड
have faith in God, the universal law, in our work and our power to do our work. We should work with a fearless and resultful heart. We should always believe that laws of universe never fail and that we must get what is our own. We must not lose this faith whether sorrow or joy comes to us. This faith will give us spiritual power to shatter all the forces of evil and to get success. If we have this faith, we shall work joyfully and peacefully. We shall not care about result, success or failure. Success will surely come. We should remember that our effective way of thought make our fate. If we are large-hearted, loving and unselfish, our success will be great and permanent. In a word, according to James Allen, the way of success is through faith and good thoughts. सफलता की कुंजी आधार विश्वास होता है। वह प्रत्येक प्राणी जिसके पास विश्वास होता है वह सफलता प्राप्त करता है। सफल होने के लिए हमें भगवान तथा सर्वशक्तिशाली नियम में विश्वास रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने कार्य तथा अपने कार्य करने की शक्ति में विश्वास रखना चाहिए। हमें निर्भीक तथा शांतिप्रद हृदय के साथ कार्य करना चाहिए। हमें सदैव विश्वास करना चाहिए कि ईश्वर के नियम कभी असफल नहीं होते हैं तथा हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमें वही प्राप्त होना चाहिए जो हमारा अपना है तथा जिस पर हमारा अधिकार है। हमें इस प्रकार के विश्वास को नहीं खोना चाहिए, चाहे हमें दुख प्राप्त हो अथवा सुख। इस प्रकार का विश्वास हमें बुराई की शक्ति को छिन्न भिन्न करने के लिए तथा सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करेगा। यदि हमारे अंदर इस प्रकार का विश्वास होगा तो हम प्रसन्नतापूर्वक तथा शांतिपूर्वक कार्य करेंगे। हम परिणामों के बारे में चिंतित नहीं होंगे, चाहे हमें सफलता प्राप्त हो अथवा असफलता, हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हमारे विचारों के प्रभावशाली ढंग हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। यदि हम उदार हृदय वाले, प्रिय तथा निस्वार्थी होंगे तो हमारी सफलता महान तथा स्थायी होगी। जेम्स एलन के अनुसार सफलता का मार्ग विश्वास तथा सद्विचारों में होकर प्रवाहित होता है। क्वेश्चन है, हाउ कैन ए मैन बिकम हेल्दी, सक्सेसफुल एंड पावरफुल? किस प्रकार एक व्यक्ति स्वस्थ, सफल तथा शक्तिशाली बन सकता है? आंसर, इन दिस लेसन द ऑथर जेम्स एलन सेज दैट देयर इज ए ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन लाइफ. Health is the basis of success in life. It is also the basis of power and greatness in life. If we desire to remain healthy, we should have good thoughts. Good and pleasing thoughts lead to good health. A person who has good thoughts does not need any medicine. To be healthy, we should be free from mental defects. Some people complain that they suffer from disease because of overwork. It is wrong. Those who do regular and right work do not fall ill. We should have good health. We should avoid mistake and sins. That is the way to safety from disease. Health is the basis of success, greatness and power. We should have faith in ourselves. We should have faith in our work. We should have faith in God. Faith is basis of greatness and success. Good thoughts are very necessary and useful. Good thoughts bring success, greatness and power. Good thoughts also bring peace of mind. On the other hand, bad and unhappy thoughts are very harmful. Passion is not power, it is the misuse of power. Passion is like a storm. To get success, greatness and power in life, we should avoid passion. To get greatness and power in life, we should try to have fixed aim. We should try our best to achieve it. The author says that the double-minded man is unstable in all his ways. We should understand our work and do it well. That is the key to success, greatness and power. इस पाठ में लेखक जेम्स एलन महोदय कहते हैं कि जीवन में स्वास्थ्य का बहुत अधिक महत्व होता है। स्वास्थ्य जीवन में सफलता का आधार होता है, यह शक्ति का भी आधार होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अच्छे विचार रखने चाहिए। अच्छे तथा प्रसन्नतादायक विचार अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। एक व्यक्ति जिसमें अच्छे विचार होते हैं उसे किसी औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। स्वस्थ बनने के लिए हमें मानसिक अवगुणों से मुक्त रहना चाहिए।
कुछ व्यक्ति शिकायत करते हैं कि वे बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं क्योंकि उन पर अत्यधिक कार्य का दबाव है। उनका यह कथन निराधार है। वे व्यक्ति को नियमित तथा उचित कार्य करते हैं, बीमार नहीं पड़ते हैं। हमें अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहिए। हमें स्वयं को अपराधों तथा पापों से बचाना चाहिए। यदि यही बीमारी से सुरक्षा का उपाय है। स्वास्थ्य सफलता, महानता तथा शक्ति का आधार होता है। हमें स्वयं का विश्वास धारण करना चाहिए। हमें अपने कार्य में विश्वास रखना चाहिए। हमें ईश्वर सर्वत्र विद्वान में विश्वास रखना चाहिए। विश्वास ही महानता तथा सफलता का आधार होता है। अच्छे विचार बहुत आवश्यक तथा लाभदायक होते हैं। अच्छे विचार ही सफलता, महानता तथा शक्ति उत्पन्न करते हैं। अच्छे विचार मानसिक शांति प्रदान करते हैं। दूसरी ओर बुरे तथा दुखद विचार बहुत हानिकारक होते हैं। तीव्र भावना संवेग शक्ति नहीं होती है। यदि शक्ति का दुरुपयोग होता है, संवेग एक तूफान के समान होता है। जीवन में सफलता, श्रेष्ठता तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें संवेग से बचना चाहिए। जीवन में महानता तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए। हमें इसे प्राप्त करने के लिए हमें सबसे अच्छा प्रयास करना चाहिए। लेखक कहता है कि दोहरे मस्तिष्क अर्थात दोहरे लक्ष्य वाला व्यक्ति सभी प्रकार से बेचैन रहता है। हमें अपने कार्यों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए तथा उसे भलीभांति करना चाहिए। यही सफलता, महानता तथा शक्ति की चाबी आधार है। स्टर्लिंग मीन्स मजबूत, LODGMENT, लॉजमेंट मीन्स ठहरने का स्थान, यूज करना है इनको। SHUNNED, शंड मीन्स बचना, नापसंद करना। I have always shunned the company of those drunkard. ELIXIR, elixir मीन्स अमृत। फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, संघर्ष, चिंता। बेनिफिशियल मीन्स लाभकारी। इंटर्ड विंड मीन्स उलझा हुआ। टेलिस्मैन मीन्स जादू। रिफ्यूज मीन्स शरण स्थल, शरण। कन्फाइन मीन्स सीमित होना। फ्रीवॉलिटी मीन्स जो गंभीर ना हो, मूर्खता वाले काम या बातें। पॉइज मीन्स ऐसी स्थिति जो कठिन हो। यील्डिंग मीन्स समर्पण करते हुए। सॉलिट्यूड मीन्स एकांत, निर्जन स्थान। वर्लपूल मीन्स भंवर, चक्कर, कठिनाई। डिजास्टर मीन्स विनाश। फीड मीन्स भोजन या भोजन करवाना। अनकम्प्रोमाइजिंग मीन्स कोई समझौता ना मानते हुए दृढ़ बने रहना। एक्नॉलेज मीन्स मान लेना। गिवन टू मीन्स किसी की आदत में होना। पुट अवे मीन्स हटाकर उसकी पुरानी जगह पर रख देना। ब्रोकन डाउन मीन्स टूटा फूटा। ओवरकम मीन्स हरा देना, जीत लेना। कैरी अबाउट मीन्स जनसंचार माध्यम से प्रचार करना। इनएविटेबल मीन्स जिसका होना रोका ना जा सके। सी टू इट मीन्स किसी बात की परवाह करना। सेंड फोर्थ मीन्स आगे को भेजना। आई शैल सेंड फोर्थ योर लेटर ऑन योर न्यू एड्रेस। नेक्स्ट है रिसेप्टिव मीन्स रेडी टू रिसीव। ऑब्लिवियस मीन्स फॉरगेटफुल। फॉरफीट मीन्स लॉस एज कंसेक्वेंस। एग्जैक्टिट्यूड मीन्स करेक्टनेस। ट्रांसेंड मीन्स गो बियॉन्ड। enduring means of lasting value. Refuge means shelter. Frivolous means silly and non-serious. Antonyms अनकम्प्रोमाइजिंग का कंप्रोमाइजिंग होगा। प्यूरिटी का इम्प्यूरिटी होगा। सक्सेस का अनसक्सेस होगा। सिन का चैरिटी होगा। पॉजिटिव का नेगेटिव। इनहारमोनियस का हारमोनियस। परफेक्ट का इम्परफेक्ट। केयरफुली का केयरलेसली। फिजिकल का नॉन फिजिकल। हारमोनी का डिसहारमोनी। सेल्फिश का अनसेल्फिश। फुलिशली का वाइजली। बेनिफिशियल का हार्मफुल। स्टडी का अनस्टडी। इंस्परेबली का सेपरेबली। इनसिग्निफिकेंट का सिग्निफिकेंट। फॉल्टलेस का फॉल्टी। एक्वायर का लॉस। अनमूव्ड का मूव्ड। फियरफुल का फियरलेस। पीस का डिस्टर्बेंस। प्योर का इम्प्योर। ट्रू का फॉल्स। सिनोनिम्स सिकनेस मीन्स इलनेस। जिलसी मीन्स इनवाई। सिक्योर का सेफ होगा। एनक्सियस का वरीड होगा। फैथ का बिलीफ होगा। ट्रू रियल। परस्यू फॉलो।
dauntless, fearless, satyr, brick, need, require, influence, effect, significant, important, faulty, guilty, lost, to be deprived of, fearless, brave, furious, angry, storm, cyclone. sin means पाप. धार्मिक दृष्टिकोण से he confessed his sin before the high priest of the temple. यूज करना है. crime means अपराध. कानूनी दृष्टिकोण से pain means दर्द. PANE pain means खिड़की या दरवाजे में लगा कांच. COURSE कोर्स means रास्ता. अध्ययन के विषयों की सूची. COARSE कोर्स means खुरदरा. CONTINUOUS कंटिन्यूस मीन्स लगातार. CONTINUAL कंटिन्यूअल मीन्स रुक रुक कर लगातार होते रहना. FRICTION फ्रिक्शन मीन्स संघर्ष, खुरदरापन. FRACTION फ्रिक्शन मीन्स बहुत छोटा भाग. STEADY स्टडी मीन्स मजबूत दृढ़. STUDY स्टडी मीन्स अध्ययन. HEART हर्ट मीन्स हृदय दिल. HURT हर्ट मीन्स चोट पाना. PRICELESS प्राइसलेस मीन्स कीमती बहुमूल्य. PRECIOUS प्रेशस मीन्स पसंद वाली प्यारी कीमती वस्तु. RICH रिच मीन्स धनवान. RICHES रिचेज मीन्स धन संपत्ति. CLOTH क्लॉथ मीन्स बिना सिला हुआ कपड़ा. CLOTHE क्लॉथ मीन्स सिला हुआ कपड़ा. PRACTICE प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास. नाउन है ये. PRACTISE प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना. ये वर्ब है. WASTE वेस्ट मीन्स बर्बाद करना. WAIST वेस्ट मीन्स कमर. That board belt will look nice round my waist. Thanks, best of luck.